Yes, Amit, can you explain? Now, if your Sorry, ma'am. input is okay, just tell me if input is minus VR. Now, if the input is minus VR, then it is given to this integrator. Then what is the output of this integrator? If minus VR input is given to the integrator, then what is the output of this integrator? In this case, as I have told you that this integrator is already in negative configuration, then the output of integrator is given as V naught is equal to minus of 1 upon tau, यहाँ आपका input into dt. Negative sign because this integrator is used in an inverting configuration. Now, as the input is also negative, here the fixed reference voltage is negative, then your output V naught would be positive. This is the difference. Earlier the output is negative, but in this case the output is positive because of the negative input. Now the change in polarity of the output from positive to the negative, as you will see here, there is a change in the polarity of the output. Earlier it is negative, now the output is positive. It indicates that now the capacitor will charge in opposite direction. हमारा कैपेसिटर कैसे चार्ज हो रहा था? Capacitor is charging in the negative direction, but now the output is positive. It means it will change the direction of a charging of a capacitor. Now the capacitor will charge in this direction. In opposite direction means discharging of a capacitor takes place. Here the charging of a capacitor, and here we have a discharging of a capacitor. Now suppose this is the time t1 and t2. And charging आपकी कब हो रही है? When output is negative. When output of the integrator is negative, then charging of a capacitor takes place. And now the discharging कब हो रही है? When output is positive. एंड किस मैग्नीट्यूड से डिस्चार्ज होगा? वो सेम रहेगा जितने मैग्नीट्यूड से आपका जो कैपेसिटर है वो चार्ज हुआ. मींस इट विल गेट डिस्चार्ज विद द सेम मैग्नीट्यूड with which it gets charged. Means magnitude. Now there is one more point, that magnitude of a charging depends upon input. See, V naught is given as, output is given as 1 upon tau V in dt. If you will see here that the magnitude of charging, that depends upon input. It is depending upon input V in, but not the time required for charging. There is a difference. Time required for charging does not depend upon the input. कि आपका कैपेसिटर कितने टाइम के लिए चार्ज होगा ये इनपुट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, बट किस मैग्नीट्यूड से चार्ज होगा ये चीज आपकी डिपेंड कर रही है ऑन द इनपुट. एंड टाइम, कितने टाइम के लिए आपका चार्ज होगा वो किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है? कैन यू टेल मी कि आपका कैपेसिटर कितने टाइम के लिए चार्ज हो रहा है, ये किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है? कैन यू टेल मी दिस थिंग बाय लुकिंग एट द फिगर, दैट आपका जो चार्जिंग का टाइम है, दिस इज द टाइम फॉर द चार्जिंग, ये कब तक चार्ज हुआ, किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है? ये कब तक Ma'am, चार्ज हो supply रहा था? voltage. ये तब तक, यस जी, ये तब तक चार्ज कर रहा था जब तक इसे नेगेटिव, जब तक इसका जो इनपुट था वो वीए था. मींस स्विचिंग टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि टाइम फॉर चार्जिंग इट इज डिपेंडिंग अपॉन द स्विचिंग ऑफ द इनपुट्स. जब तक आपका इनपुट ये था, इसको आउटपुट है जो नेगेटिव मिल रहा था, तब तक आपका जो कैपेसिटर था वो चार्ज हो रहा था इन नेगेटिव डायरेक्शन.
एंड जब आपकी टॉगलिंग होगी, स्विचिंग टाइम किस पे डिपेंड कर रहा है? टाइम फॉर चार्जिंग डिपेंड्स अपॉन द स्विचिंग, एंड स्विचिंग किसके ऊपर डिपेंड हो रही थी? दिस टॉगलिंग ऑफ अ टी फ्लिप फ्लॉप। एंड टॉगलिंग ऑफ अ टी फ्लिप फ्लॉप किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा था? ऑन द MSB of a counter. This is the MSB of a counter, and which is a negative edge. So if I say that TC is the time of clock pulses, TC is the time of clock pulses, then it is 0, and first के लिए TC है time, then second के लिए 2 TC, then up to इसके लिए 7 TC होगा, then 8 EC, 8 time of clock pulses. TC is the time of clock pulses, means after one clock pulse, then after 7 clock pulses, after 8 clock pulses आपका ये काउंट होगा। तो यहां तक आपका कौन कितनी पल्सेस मिल जाएंगे आपको? 15 क्लॉक पल्सेस। देन ये वाला आपका कब होगा? 16 TC, 16 TC आ जाएगा। इट मीन्स आपको नेगेटिव एज कब मिल रही है? 16 क्लॉक पल्सेस के बाद आपको क्या मिल रही है? नेगेटिव पल्स मिल रही है। सो जो टाइम ऑफ चार्जिंग है, फ्रॉम हियर वी कैन राइट दैट T1, T1 आपका क्या था? टाइम ऑफ अ चार्जिंग। सो जो चार्जिंग टाइम है T1, इट कैन बी रिटन एज 2n इंटू TC। n इज द बिट साइज ऑफ द ADC, कि आपका ADC कितने बिट का है। हेयर आपका ADC कितने बिट का है? n is the bit size of ADC. Can you tell me the bits of आपका ADC कितने बिट का है? 4 bits. Here we have 4 bits. तो आपका जो ADC होगा कितने बिट का होगा? See, look here we have 4 bits. 1 2 3 4. तो it means T1 2 raised to power 4 into TC मीन्स चार्जिंग टाइम अगर आपने कैलकुलेट करना है वो आपका ऐसे आ जाएगा। मीन्स इट विल रीच टू 0 0, फिर से 0 0 कब पहुंचेगा? आफ्टर 16 क्लॉक पल्सेस। यहां तक कब आ रही है? आफ्टर 16 क्लॉक पल्सेस। एंड ये आपको कैसे पता चलेगा कि आपका काउंटर इट इज गिवन एज 2 रेज टू पावर n इंटू TC। जितना आपका कितने बिट का आपका ADC है उस चीज के ऊपर ये डिपेंड कर रहा है। नाउ आफ्टर दैट, as you will see that discharging is still going on, आपकी डिस्चार्जिंग हो रही है, बिकॉज जो आपका मैग्नीट्यूड है V0 का वो अभी भी नेगेटिव है। वाई? बिकॉज अभी तक ये सपोज ये अभी इतना चार्ज हुआ, अभी इतना हुआ, यहां तक कंप्लीटली चार्ज नहीं हुआ, डिस्चार्ज नहीं हुआ। इट मीन्स जो आपका जो VC है, कंपैरेटर का आउटपुट, वो हाई है। मतलब जो आपका V0 है, जो मैग्नीट्यूड है आउटपुट वोल्टेज का, वो अभी तक नेगेटिव है। वाई? बिकॉज अभी तक आपका ये फुली डिस्चार्ज नहीं हुआ। जब ये आपका फुली डिस्चार्ज हो जाएगा, आफ्टर सम टाइम व्हेन इट विल गेट फुली डिस्चार्ज्ड, जब ये यहां तक कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाएगा, कैपेसिटर इज फुली डिस्चार्ज, तो जो आपका V0 होगा that becomes slightly greater than this positive value. Here we have 0, means here we have a positive value. ग्राउंड से आपका जो V0 होगा वो ग्रेटर हो जाएगा। V0 इज ग्रेटर देन दिस ग्राउंड। अभी तक आपका जो V0 था वो नेगेटिव ही था, बिकॉज आपका जो कैपेसिटर है वो कंप्लीटली डिस्चार्ज नहीं हुआ था। बट आफ्टर सम टाइम जो आपका V0 है, इट बिकम्स स्लाइटली ग्रेटर देन दिस पॉजिटिव वैल्यू, एंड जो आपकी वोल्टेज होगी इन्वर्टिंग टर्मिनल की, दैट इज मोर देन दिस नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। और अगर इन्वर्टिंग टर्मिनल की वोल्टेज ज्यादा हो गई, तब आपका कंपैरेटर का आउटपुट क्या आएगा?
if the voltage at inverting terminal is more as compared to the non-inverting terminal, then what is the output of the comparator? माइनस वी नॉट। अच्छा, माइनस भी कंपैरेटर का आउटपुट, इट कंपैरेटर का आउटपुट या तो हाई होगा या लो होगा। Here we have used op-amp as a comparator and without feedback। जब हम comparator को यूज करते हैं, जब हम op-amp को without feedback as a comparator यूज करते हैं, उस केस में टू ही आउटपुट्स होते हैं आपके, इधर प्लस वी सैचुरेशन या माइनस वी सैचुरेशन। प्लस वी सैचुरेशन कब आता था? जब आपका नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के ऊपर वोल्टेज ज्यादा होता था। अगर प्लस वी सैचुरेशन है मीन्स आउटपुट क्या है? हाई है। अगर माइनस वी सैचुरेशन है मीन्स आउटपुट लो है। एंड इन डिजिटल टर्म्स हाई आउटपुट मीन्स 1, low output means 0. So here if the voltage at inverting terminal is more than this non-inverting terminal, then your output would be low. Low means 0। और अगर यहाँ 0 आएगा आपका, तो आगे क्लॉक पल्सेस जाएंगे काउंटर को या नहीं? काउंटर को क्लॉक पल्सेस मिलेंगी या नहीं? काउंटर को कोई क्लॉक पल्सेस नहीं मिलेंगी। लो आउटपुट मींस क्लॉक पल्सेस विल नॉट बी सप्लाइड टू द काउंटर एंड काउंटर स्टॉप्स काउंटिंग। एंड जिस वैल्यू पे आके आपका, जिस पर्टिकुलर काउंट पे आके आपका काउंटर स्टॉप हो जाता है, दैट इज योर डिजिटल आउटपुट। आपका अभी तक हमने देखा था कि आपका 0 0 के ऊपर पहुंच गया था जब आपकी टॉगलिंग नहीं हुई थी। टॉगलिंग से पहले आपका 0 0 के ऊपर पहुंच गया था। देन हमने देखा कि आपकी टॉगलिंग होगी बिकॉज नेगेटिव एज मिल गया। जब नेगेटिव एज मिल गया तब आपका जो कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो गया। जब तक आपका कैपेसिटर कंप्लीटली डिस्चार्ज नहीं हुआ था तब तक आपका वी नॉट नेगेटिव ही रहेगा। एंड जब तक आपका वी नॉट नेगेटिव रहेगा तो इस कंपैरेटर का आउटपुट क्या रहेगा? 1 रहेगा, बिकॉज वी नॉट इज नेगेटिव एंड ग्राउंड इज ऑलवेज ग्रेटर देन दिस नेगेटिव। तो कंपैरेटर का आउटपुट 1 रहेगा, मींस काउंटर को क्लॉक पल्सेस मिलती रहेंगी। तो ये 0 0 के बाद फिर से काउंट करना स्टार्ट कर देता है जब तक ये कंप्लीटली डिस्चार्ज नहीं होता। 0 0 1, आफ्टर दैट 0 0 1 0 0 0 1 1 एंड सो ऑन। जब एक पर्टिकुलर वैल्यू पे आके आपकी इस वी नॉट की वैल्यू ग्रेटर हो जाती है देन दिस, मतलब कुछ स्लाइटली पॉजिटिव हो जाती है, जब ये कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाएगा मीन्स ये कुछ पॉजिटिव हो जाएगी वैल्यू, तो उस वैल्यू पे आके कंपैरेटर का आउटपुट लो हो जाएगा। एंड अगर लो हो गया उस टाइम पे काउंटर को कोई क्लॉक पल्स नहीं मिलेगी एंड उस पर्टिकुलर काउंट को हम बोलते हैं दैट इट इज योर डिजिटल आउटपुट। मीन्स वी हैव कन्वर्टेड एन एनालॉग input into digital output. Is it clear? यस मैम। Okay. So इसमें we have हमारे two conclusions हैं कि time of a charging. This is the time of charging. It depends upon the number of bits. कितने bit का आपका ADC है. And magnitude of charging that depends on the input voltage. That is depending upon the input voltage. Now this is a task for you. You have to मुझे ये चीज बतानी है कि what will happen if we will increase the input voltage। कि आपका जो input voltage है, if we will increase this input voltage, what will happen if we will increase the input voltage? आपका magnitude of charging किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जिंग दैट इनपुट इज। वोल्टेज। और अगर हमने इनपुट वोल्टेज इंक्रीज कर दी तो आपका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जिंग इंक्रीज होगा, बट टाइम ऑफ चार्जिंग इंक्रीज होगा या नहीं? T1 इज द टाइम ऑफ चार्जिंग एंड दिस T2 इज द टाइम, कितना टाइम उसे डिस्चार्जिंग के लिए लगा। दिस इज द टाइम ऑफ डिस्चार्जिंग, टाइम ऑफ डिस्चार्जिंग।
नाउ टेल मी कि अगर आप इनपुट वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हो, इफ यू आर इंक्रीजिंग द इनपुट वोल्टेज, देन आपका जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जिंग है वो इंक्रीज होगा, बट आपका टाइम ऑफ चार्जिंग इंक्रीज होगा या नहीं? नो मैम। बिकॉज इट इज डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ बिट्स। जो टाइम ऑफ चार्जिंग था वो नंबर ऑफ बिट्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, नॉट ऑन द मैग्नीट्यूड। सो यस मैम। सपोज अर्लियर आपका टी वी नॉट, अर्लियर आपका टाइम t1 था एंड आपका मैग्नीट्यूड था यहां तक -2 वोल्ट। -2 वोल्ट is your magnitude, and this is the time of discharging T2. Now if I have increased the input voltage, मैंने input increase कर दिया, तो मेरा magnitude of charging तो increase होगा, but time increase नहीं होगा। तो it means ये कुछ ऐसा आ जाएगा। अगर मैंने Vin increase किया तो जो मेरा आउटपुट था that will increase, it means magnitude of charging will increase। if suppose if earlier it is -2 volt, now ये आपका -4 हो गया, but ये time of charging, look here, it will remain the same because time of charging is depending upon the number of bits। so ये आपका concept है एक। so this is all about the dual slope ADC। And in dual slope ADC के advantages क्या हैं? It has a very high accuracy, that's why it is used in labs में आपकी ये dual slope ADC use होती है। and it is used in digital multimeters, labs में we use it in digital multimeters, but the disadvantage of this ADC is that it is the slowest ADC। So tomorrow we will discuss successive approximation analog to digital converter।